اللہ کی ذات ہے عزت اور ذلت دینے والے۔ ارے کیا کیا اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے جو لوگ شبیر برکاتی کو دعوت کرتے ہیں، انہیں اپنے پروگرام میں جو ہے نعت پڑھنے کے لیے مدعو کرتے ہیں، انہیں جو ہے 60,000 70,000 40,000 نذرانہ دے کر اپنی محفل میں بلاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہ شخص محفل میں بلانے کے لائق ہے؟ کیا شبیر برکاتی ہمارے محفل میں نعت پڑھنے کے لائق ہے یا نہیں؟ کبھی غور کیے؟ ایک بار غور کیجئے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آج سے آپ ضرور ایک بار غور کریں گے کہ ہم شبیر برکاتی کو اپنے محفل میں دعوت کریں یا نہ کریں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کسی عالم کے پاس علم نہیں سیکھا، یہ وہ شخص ہے جسے اردو تک نہیں آتا ہے، یہ وہ شخص ہے دین کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے پہ جو ہے داڑھی جو ہے شریعت کے مطابق نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے جو ہے ہمیشہ جو ہے حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے منقبت پڑھا ہے، کبھی صدیق اکبر، عثمان غنی یا حضرت علی کے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک بھی اس کی منقبت نہیں ہے۔ اس کے عقیدہ کے بارے میں جانیے اور اس کے بارے میں پہچانیے، پھر اس کو جو ہے اپنی محفلوں میں بلائیے۔ جس شخص کو عزت اور ذلت بولنا نہ آئے، اس شخص کو آپ اپنی محفل میں کیسے بلاتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ اور بھی 40,000 نذرانہ دے کر 60,000 نذرانہ دے کر اس شخص کو بلاتے ہیں۔ آئیے کچھ ویڈیو ان کو ہی دکھاتا ہوں جنہیں جو ہے عزت اور ذلت بولنا نہیں آتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بغیر مائک کے اگر یہ نعت پڑھنا شروع کرے تو لوگ بھاگ جائے۔ تو چلیے ان سے کچھ بولنے سے پہلے ان کی کچھ کلپ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بنیے اور کچھ کلپ دیکھیے۔ اللہ کی ذات ہے عزت اور ذلت دینے والے۔ ارے کیا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں۔ مولانا بول رہے کہ نچنا نہیں ہے، تو ناچنے والے تو علی والے ہوتے ہی نہیں ہے، وہ الگ ہوتے ہیں جو نشا کرتے خود کو کہتے علی والے ہیں۔ ہم علی والے وہ جو فجر کی اذان سن کر نماز میں جاتے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ہے عزت اور ذلت دینے والے۔ ارے کیا کیا پیارے ناظرین، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا۔ جس شخص کو عزت اور ذلت نہ بولنا ہے، آپ اس کو محفل میں بلاتے، وہ بھی 60,000 70,000 نذرانہ دے کر۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کسی عالم کے پاس جو علم حاصل نہیں کیا۔ یہ وہ شخص ہے جسے عزت اور ذلت بولنا نہیں آتا ہے، یہ وہ شخص ہے جسے اردو تک نہیں آتی ہے، اردو زبان بولنا بھی نہیں آتا۔ آپ اس شخص کو جو ہے اپنی محفل میں بلاتے، وہ بھی 70,000 80,000 دے کر۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صرف حضرت علی کے بارے میں منقبت پڑھا، کبھی اس کے ایک تمام ویڈیو کلپ کو اٹھا کر دیکھے، کبھی کسی کلپ میں جو ہے صدیق اکبر کے بارے میں یا عثمان غنی کے بارے میں یا حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک بھی منقبت اس شخص نے نہیں پڑھا۔ اس کے تمام نعروں کو دیکھیں، نعرہ حیدری تو لگا رہا ہے لیکن نعرہ صدیق کبھی لگایا نہیں لگایا۔ مجھے تو ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یہ شخص کہیں تو ایسا نہیں جو شیعہ بھی ہو، سنی کی لباس میں آ کر شیعہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے جو لوگوں کے سامنے ڈانٹا اسے ایسا ہی ڈانٹنا چاہیے۔ جب جرم جو ہے جب کھلے عام کرے تو کھلے عام اس کو ڈانٹا جائے، جرم جب چھپ کے کرے تو چھپ کے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے کامنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو ہے غلط طریقے سے ان کو سمجھایا، نہیں، مفتی صاحب نے صحیح کیا۔ اس سے پہلے بھی شبیر برکاتی کو کئی لوگوں نے جو ہے علی جو خاص کر کے جو علی ٹائپ کی جو نعت پڑھتے ہیں، ایسا لگ رہا قوالی ہے، اور لوگ جو جھومنے لگتے ہیں اور ایسے نعرے لگاتے ہیں وہاں۔ تو اس سے پہلے بھی کئی علماء نے، کئی جو ہے مفتیوں نے جو ہے مفتی صاحب نے جو ہے ان کو ڈانٹا اور سمجھایا، لیکن اس نے کبھی نہیں سمجھا۔ جب مفتی شہریار صاحب نے جو ہے کھلے عام جب ڈانٹا تو اس کا اثر تھوڑا بہت اس پر ہوا ہے۔
और फिर जो है वही हरकत दोबारा फिर जो है वही हरकत करना शुरू कर दिया। तो सोचिए, जब एक आलिम उसको समझाया लोगों के सामने फिर भी वो ना सुधरे। कुछ लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि मुफ्ती साहब गलत है। नहीं, मुफ्ती साहब बरहक है और मुफ्ती साहब के साथ तमाम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमा, तमाम मुफ्तियान निज़ाम, मुफ्ती शहरियार के साथ है। आप कैसे एक जाहिल का साथ दे सकते हैं? ये वो जाहिल है जिसे दीन का इल्म नहीं, आप उसका साथ दे रहे हैं, उसे 70,000 80,000 देकर महफिलों में बुलाते हैं। क्या ये इस्लाम है? ये दीन का मजाक उड़ा रहा है, दीन का मजाक बना रहा है। आज शब्बीर बरकाती को बुला रहे, हो सकता है कल आप कव्वाल को बुला ले। कव्वाली में और शब्बीर बरकाती में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। कव्वाली भी वैसे ही पढ़ते हैं और शब्बीर बरकाती का भी मामला वही है। ये वो शख्स है जिसके चेहरे पर शरीयत के मुताबिक दाढ़ी तक नहीं, जिसे उर्दू बोलना भी नहीं आता, शरीयत के बारे में कुछ मालूमात नहीं। आप उस शख्स को 60,000 देकर आप क्या दीन सीखेंगे? हरगिज नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा, जो लोग शब्बीर बरकाती के सपोर्ट में कहते हैं कि शब्बीर बरकाती को गलत अंदाज में डांटा समझाया, इससे पहले भी मुफ्ती शहरियार के अलावा भी कई लोगों ने जो है शब्बीर बरकाती को डांटा समझाया, लेकिन वो समझा नहीं, अभी तक जो है वो अमल नहीं किया। तो गलती किसकी है? यहाँ सरासर जो गलती है जो है शब्बीर बरकाती की है। उसे चाहिए था कि जब मुफ्ती साहब डांटे तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे अमल करना चाहिए। जब एक शरअ आलिम दीन जब उसको समझाया तो उस बात को अमल करना चाहिए। ये एक तरह का जाहिल है और जाहिल के साथ साथ हट धर्मी भी है शब्बीर बरकाती की। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग शब्बीर बरकाती के फेवर में, वो ज़रा सोचे और इस शख्स को अपनी महफिल में ना बुलाए, बल्कि ऐसे शख्स को जो है बॉयकॉट करे जो सिर्फ अली अली कहता हो। नाज़रीन किराम, अहले सुन्नत का यही तरीक़ा रहा। जहाँ सिद्दीक़ अकबर को याद करते हैं वहाँ उस्मान गनी को भी याद करते हैं, जहाँ उस्मान गनी को याद करते हैं वहाँ अली को भी याद करते हैं, जहाँ अली के बारे में हज़रत अली के बारे में मनक़बत पढ़ते हैं वहाँ सिद्दीक़ अकबर के बारे में भी मनक़बत पढ़ते हैं। लेकिन अगर शब्बीर बरकाती का तरीका देखें तो सिर्फ अली अली, जिस तरह वो अली अली कहते हैं और जिस तरह वो माहौल बनाते हैं, ऐसा ये माहौल जो है शियाओं में ज़्यादातर चलता है। तो हमें चाहिए गौर फिक्र करने की बात है। एक जाहिल को हम जो है 60,000 देकर हम उसे नात पढ़ने के लिए बुलाते हैं, जिसे नात पढ़ना तक नहीं इज्जत और जिल्लत बोलना ना आए, हम उसे कैसे महफिल में बुलाए? तो हमें चाहिए ऐसे लोगों से बॉयकॉट करें। और ये कोई अफ्रीका का नहीं है, बल्कि ये शख्स जो है गुजरात का रहने वाला है और ये आम आदमी था पहले। ये शब्बीर बरकाती कोई आलिम नहीं, कोई दीन का कोई बहुत बड़ा दीनदार नहीं, बल्कि ये शख्स जो है आमतौर से पहले कव्वालों के पास जाता था, कव्वाली सुना करता था। बाद में जो है ये नात पढ़ाना शुरू किया। इसे सिर्फ मुझे लग रहा है इंग्लिश वगैरह आता होगा और उसी से जो है नातों को याद करता होगा। जिस शख्स को इज्जत और जिल्लत ना बोलना आए वो शख्स क्या नात पढ़ेगा वो? तो हमें चाहिए ऐसे लोगों को महफिलों में ना बुलाए, बॉयकॉट करना चाहिए और ऐसे लोगों को बुलाए जो वाक़ई बुलाने के लायक है, वाक़ई शरीयत के मुताबिक नात पढ़ता हो, कुरान और हदीस के मुताबिक नात पढ़ता हो, खुद अमल भी करता हो। ऐसे शख्स को जो है महफिलों में बुलाइए और अपने पैसों को जो है बर्बाद मत कीजिए। इन जलसा जुलूस से कौम को फ़ायदा नहीं होता है। कौम को फ़ायदा होगा इल्म से, और इल्म दीन सीखने और सिखाने से कौम को फ़ायदा होगा। इस तरह अगर कौम के पैसे एक प्रोग्राम में तकरीबन 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करते हैं, क्या इससे कौम को फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं। एक नात खान को 60,000 रुपए देंगे तो क्या कौम को फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं। जो है एक प्रोग्राम के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग, क्या इससे कौम को फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं। किसी नात खान, आप एक प्रोग्राम में 4 नात खान आते हैं, अब सोचो 4 नात खान आ गए तो 40,000 करके जोड़ लीजिए, कितने रुपए हो रहे हैं? ज़रा गौर कीजिए। ये सब पैसे हमारे जो है बर्बाद हो रहे, एक भी दीन के काम में नहीं लग रहा। तो हमें ऐसे नातख़्वाह को बुलाइए जो अपने इलाके के हो, अपने करीब के हो। जैसे आप दिल्ली में है, दिल्ली में जो करीब नातख़्वाह हैं उसको बुलाइए। कर्नाटक में जो नातख़्वाह है उसको बुलाइए। और ऐसे दूर दराज से नातख़्वाह बुलाकर आपका जो है दीन का काम नहीं होने वाला है। आप 60,000 या 70,000 देकर सोच रहे हैं कि दीन का काम हो रहा है, किसी नातख़्वाह को बुला ले 60,000 में, हमें दीन का काम हो रहा। नहीं, इससे दीन का ज़रा सा भी काम नहीं होगा। दीन का काम कब होगा? जब आप जो है लोगों को इल्म सीखेंगे, इल्म खुद सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे, दीनी मदारिस कायम करेंगे, तब जाकर कौम को फ़ायदा होगा। इससे कौम को ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं होगा। और हमारे सुन्नियों का हाल इसी वजह से जो है खस्ता है। हमारे सुन्नी नौजवानों को खड़ा करके पूछा जाए दीन के बारे में तो मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन में शायद ही 1-2 का उत्तर दे सके, 1-2 का जवाब दे सके। ये हालात है। तो हमें चाहिए अपने कौम के नौजवानों को दीन सिखाए और दीन के करीब करे और उन्हें इल्म दीन से आरास्ता करे। और इस तरह के जलसों में जो है 2 से 3 लाख रुपए पैसे ना बर्बाद करे। और
मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो से सहमत है। अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।